A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last video of accountancy, we discussed the last topic of chapter number 8, that is accounting for debenture, issue of debenture. The topic is writing of discount or loss on issue of debenture. In the last class, we discussed there are basically three methods which are used to write off the discount or loss on issue of debenture. The first method, you know very well, the name of the first method is writing off discount of equal amount each year, यानी जिसमें हम हर साल equal amount discount की write off करते हैं. And the rest, second method will be known as the writing of proportionate amount each year. And number third, repayable of debenture in equal installment. So there are basically three cases which are included in this topic. So you know very well, in the last video we already discussed the first method of writing of discount or loss on debenture. Now we will move to the second method. The second method is writing of proportionate amount each year. The second method is writing of proportionate amount each year. Okay, so this is a second method which are used to write off the discount or loss on issue of debenture. So इस method में आपको ये दिख रहा होगा, the second name is proportionate amount. It means फर्स्ट मेथड में आपने देखा था कि डिस्काउंट की इक्वल अमाउंट राइट ऑफ हो रही थी, यानी हर साल कंपनी क्या कर रही थी, एक बराबर अमाउंट राइट ऑफ कर रही थी. बट सेकेंड मेथड में होता क्या है, इस मेथड में कंपनी क्या करती है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ईच ईयर राइट ऑफ करती है. सो प्रोपोर्शनेट अमाउंट मींस if the debenture are to be redeemed in installment, the discount on issue of debenture should be written off in the ratio of outstanding debenture each year. What is the method, what is the meaning of this method? So please note down in your copy, if the debenture are to be redeemed, if the debenture are to be redeemed in installment, यानी जब कंपनी एक साथ डिबेंचर को राइट ऑफ नहीं करती. जैसे इससे पहले आपने देखा था होगा, फर्स्ट मेथड में कंपनी क्या कर रही थी, 3 साल बाद एक साथ सारे डिबेंचर को रिडीम कर रही थी, यानी वहां पे वो कंपनी एक साथ सारे डिबेंचर को रिडीम कर रही थी. यहां पर क्या कर रही कंपनी, ये मेथड तब अडॉप्ट करेंगे जब डिबेंचर रिडीम किया जाएगा किसमें, इन इंस्टॉलमेंट. If the debenture are to be redeemed in installment, then the discount on issue of debenture, discount और loss दोनों यूज कर सकते हो, discount on issue of debenture should be written off in the ratio of outstanding balance in each year. Okay, so basically if we are talking about the method of writing of discount or loss on issue of debenture, अगर हम बात करें कि डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करना है डिबेंचर के हर साल, तो उसके बेसिकली दो तरीके होते हैं. यू नो वेरी वेल, कंपनी अपने डिबेंचर को दो तरह से रिडीम करती है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो सब कंपनी किसी तरह से रिडीम करती है, दो तरीके से. एक क्या कर सकती है, लमसम. लमसम का मतलब क्या होता है, जब कंपनी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक साथ सारा डिबेंचर रिडीम कर देती है. जैसे मैंने कहा कि मैं आज 10 लाख रुपए का डिबेंचर इश्यू करूंगा और 10 साल बाद उसे रिडीम कर दूंगा, यानी आफ्टर 10 ईयर मैं पूरा 10 का 10 लाख रुपए वापस लौटाऊंगा, यानी एक साथ 10 लाख रुपए लौटाऊंगा. दिस इज नोन एज द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय लमसम मेथड. एक तरीका होता है कि कंपनी अपने डिबेंचर को कैसे रिडीम करती है, इन इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट मतलब
मैंने कहा कि मैं 10 साल बाद इकट्ठे पूरा डिबेंचर रिडीम नहीं करूंगा, मैं आज से 10 साल के लिए डिबेंचर इशू कर रहा हूं और उसको इंस्टॉलमेंट में, यानी कि हर 2-2 साल पे, हर 3-3 साल पे या हर साल हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे. सो बेसिकली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विल बी डन बाय द कंपनी बाय द फॉलोइंग टू वे, लमसम एंड इंस्टॉलमेंट. जब कंपनी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करती है लमसम में, लमसम मतलब एक साथ पे कर देती है, तो उसमें हम लोग कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं? फर्स्ट मेथड. आपने देखा होगा फर्स्ट मेथड के क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में, तो यू विल फाइंड दैट कि कंपनी फर्स्ट मेथड में क्या करती थी, यू नो वेरी वेल, कि कंपनी हर साल इक्वल अमाउंट प्रोपोर्शन, इक्वल अमाउंट क्या करती थी? राइट ऑफ करती. उसमें क्योंकि कंपनी क्या करती थी, इकट्ठे 3 साल बाद, इकट्ठे 5 साल बाद, इकट्ठे 10 साल बाद कंपनी पूरा पैसा रिडीम करेगी, इंस्टॉलमेंट नहीं कर रही है. सो जब कंपनी डिबेंचर को रिडीम करती है लमसम, तो हम उस सिचुएशन में राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का कौन सा मेथड ड्रॉप करते हैं? फर्स्ट मेथड. अब रही बात इंस्टॉलमेंट की, तो इंस्टॉलमेंट दो तरीके से कंपनी पे कर सकती है. जैसे मैं समझाऊं आपको कि कंपनी ने कहा कि मैं आज 10 लाख रुपए के लिए डिबेंचर इशू कर रहा हूं, कंपनी को 10 लाख रुपए मिल गए और कंपनी ने कहा कि मैं 10 लाख को 10 साल में रिडीम करूंगा. अब इंस्टॉलमेंट कैसे हो सकती है? इक्वल हो सकती है और अनइक्वल हो सकती है. इक्वल का मतलब क्या है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हम हर साल 1-1 लाख रुपए रिडीम करेंगे. So this is known as the redemption of debenture in equal installment. और एक क्या होगा? When redemption of debenture in unequal installment. अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि जब एक तरीका क्या है, जब कंपनी इक्वल यानी हर साल बराबर बराबर क्या करेगी? डिबेंचर को रिडीम करेगी, तो उसको बोलेंगे इक्वल. जैसे मैंने कहा कि आज मैंने 10 लाख का डिबेंचर इशू किया 10 साल के लिए, तो कंपनी ने कहा कि मैं हर साल 1-1 लाख रुपए रिडीम करूंगी. 10 साल बाद ऑटोमेटिक पूरे 10 साल के डिबेंचर रिडीम्ड हो जाएंगे. दिस इज नोन एज अ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट. अनइक्वल क्या होगा? जैसे कंपनी ने कहा कि मुझे आज से मैं 10 साल के लिए क्या कर रहा हूं? डिबेंचर को रिडीम करना है. तो कंपनी ने डिसाइड किया कि पहली बार में मैं 2 लाख रुपए दूंगा, दूसरी बार में मैं 3 लाख रुपए दूंगा, तीसरी बार में मैं 5 लाख रुपए दूंगा. कंपनी ने डेट डिसाइड कर दिया 2-2 3-3 साल के डिफरेंस पे. तो अनइक्वल का मतलब क्या है कि कंपनी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जितना पैसा उसके पास रहेगा वो डेट डिसाइड कर देगी, इतना इतना वो डिबेंचर रिडीम करेगी. अनइक्वल, इनइक्वल एंड इक्वल. सो अगर इक्वल रिडम्पशन हो रहा, इंस्टॉलमेंट का कौन सा रिडम्पशन हो रहा है? इक्वल, तो कंपनी कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगी राइट ऑफ करने के लिए? सेकंड मेथड, जो हम पढ़ने का. क्या है वो मेथड? राइटिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ईच ईयर. ये मेथड तब अडॉप्ट करती है कंपनी जब डिबेंचर का रिडम्पशन इक्वल इंस्टॉलमेंट बेस से होता है. और थर्ड मेथड क्या है? रीपेबल ऑफ डिबेंचर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? थर्ड मेथड अडॉप्ट करते हैं. यानी जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन कर रही है लेकिन इक्वल नहीं कर रही, अनइक्वल कर रही है. इसको ये पहले कॉपी में नोट कर लेना. द सेकेंड मेथड दैट इज राइटिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ईच ईयर. ठीक है. अब मैं इनको और अच्छे से समझा देता हूं. पहले मैं इसको समझा देता हूं आपके लिए. सपोज कंपनी ने आज 10 लाख रुपए का डिबेंचर इश्यू किया, ठीक है, और कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 10 साल बाद इस डिबेंचर को रिडीम कर देंगे इन लमसम. लमसम मतलब इकट्ठे, आफ्टर 10 ईयर बाद हम इसका रिडम्पशन कर देंगे. सो दिस इज नोन एज द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लमसम. सो अगर इस डिबेंचर को इशू करने में कोई लॉस होगा, कोई डिस्काउंट होगा, तो कंपनी इसको क्या करेगी? फर्स्ट मेथड से राइट ऑफ करेगी. फर्स्ट मेथड आपको पता ही है, अभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है. अगर मैं दूसरा तरीका आपको बताऊं, कंपनी ने कहा 10 लाख का डिबेंचर इशू करेंगे 10 साल के लिए, लेकिन कंपनी ने कहा कि 1 लाख ईच ईयर हम क्या करेंगे? रिडीम करते जाएंगे. तो पहले साल कितना रिडीम हो जाएगा? 1 लाख, बचेगा 9 लाख. फिर 1 लाख रिडीम होगा 8 लाख, 1 लाख 7 लाख, 1 लाख रिडीम हुआ 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख. 10 साल बाद क्या हो जाएगा? डिबेंचर की वैल्यू 0. सो दिस इज अ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय द इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड. इसमें क्या करती है कंपनी? कौन सा राइट ऑफ कौन सा मेथड ड्रॉप करती है? सेकेंड मेथड.
यानी इस तरह के कंडीशन में अगर कोई डिस्काउंट या लॉस होता है तो कंपनी सेकंड मेथड अडॉप्ट करती है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड। कंपनी ने कहा कि हम आज 10 लाख का डिबेंचर इशू करेंगे 10 साल के लिए, लेकिन रिडम्पशन हम क्या करेंगे, दूसरे साल हम 20 लाख 2 लाख का रिडम्पशन कर देंगे, पांचवें साल हम 3 लाख का रिडम्पशन कर देंगे, और आखिरी साल यानी 10वें साल हम 5 लाख का रिडम्पशन कर देंगे। तो देखो कंपनी ने क्या कहा कि हम 2 साल बाद 2 लाख रुपए वापस करेंगे, 5 साल बाद 3 लाख रुपए वापस करेंगे, 10 साल बाद 5 लाख। यहाँ क्या इक्वल चल रहा है? नहीं सर, कभी 2 लाख रुपए का डिबेंचर होल्डर को पे करके खत्म कर दे रही है, कभी 3 लाख रुपए देके खत्म कर दे रही है, कभी 5 लाख रुपए देकर खत्म कर दे रही है। सो यू कैन सी दैट द थर्ड मेथड ऑफ रिडम्पशन इज unequal installment, redemption of debenture by the unequal installment. I hope ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मेथड पे। So let's we take the one question related to the method number 2. The question is, a company issued 1 lakh rupees debenture. A company issued rupees 1 lakh debenture at a discount at the rate of 6%, repayable by annual drawing, by annual drawing of rupees 25,000. Show discount on debenture account for 4 years. अब आप खुद देखो, देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इज दैट क्योंकि मैंने आपको लाइन लिखवाया था स्टेटमेंट में कि कंपनी सिचुएशन में डिस्काउंट को राइट ऑफ तो करती है, बट किस बेसिस पे राइट ऑफ करती है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट ईच ईयर, जितना उसके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट अवेलेबल होता है। सो द क्वेश्चन इज, एक कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया 6% डिस्काउंट पे, जो रीपेबल है एनुअल ड्राइंग, यानी हर साल कंपनी कितना रुपए रिडीम करेगी? 25,000 रुपए हर साल। अब आप देख रहे हो इंस्टॉलमेंट पे रिडीम कर रही है, और हर साल का अमाउंट डिसाइड है कि हर साल कंपनी कितना रिडीम करेगी? 25 25 25। तो कितने साल में रिडीम हो जाएगा सर? 4 साल में। 25,000 अगर एक साल में रिडीम करेगी तो 4 साल में कितना रिडीम कर देगी? 1 लाख। तो 1 लाख का डिवेंचर रिडीम हो जाएगा। आपको डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट शो करना है। शो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट फॉर 4 ईयर। 4 साल के लिए आपको क्या करना है? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट शो करना है। तो उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि हर साल कंपनी कितना डिवेंचर का अमाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट राइट ऑफ करेगी। तो उसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। तो टेबल कैसे बनेगा? जिसे हम लोग बोल सकते हैं एनालिटिकल टेबल। उसमें आप खुद देखोगे कि सबसे पहले ईयर, कितने साल में रिडीम कर रही है कंपनी? 4 साल में। 1 2 3 4। द सेकेंड टेबल इज अमाउंट यूज्ड, कितना पैसा रिडीम कर रही है कंपनी। तो अमाउंट यूज्ड। थर्ड टेबल इज रेशियो, और फोर्थ वन इज अ अमाउंट राइट ऑफ। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि कितना डिस्काउंट हुआ, तो वो भी निकाल लो। डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी इस कंडीशन में? द टोटल डिस्काउंट विल बी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी 1 lakh 6%. The total discount will be 1 lakh into 6%, that is 6,000. So total discount will be 6,000. अब आप देखो पहले साल कंपनी के पास कितना अमाउंट था? 1 लाख रुपए। ठीक, उसमें से कंपनी ने पहले साल के एंड में कितना रिडीम कर दिया होगा? 25,000। तो कंपनी के पास कितना बचा होगा? 75,000। फिर तीसरे साल फिर कितना, दूसरे साल फिर कितना राइट ऑफ कर दी होगी? 25,000। मतलब कितना पेमेंट कर दी होगी? रिडम्पशन की बात मैं कर रहा हूं। 1 लाख शुरू में था, एक साल के अंत में कंपनी ने कितना राइट ऑफ कर दिया?
एक साल के एंड में कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया, दैट इज 25,000। तो सेकेंड ईयर के बिगनिंग में कितना बैलेंस बचा? 75,000। फिर दूसरे साल राइट ऑफ किया तो कितना बचा हो, मतलब कितना रिडम्पशन कर दिया होगा 25,000, तो कितना बचा होगा? 50,000 रुपए। फिर चौथे साल कितना बचा होगा कंपनी के पास? 25,000 रुपए। और चौथे साल के एंड में कंपनी ने पूरा रिडीम कर दिया हो, तो आप देख रहे होगे कि कंपनी कितना अमाउंट राइट ऑफ कर दे रही है, ये रुपीज में, एंड दिस विल ऑल्सो इन रुपीज। सो यू कैन सी दैट कंपनी ने पहले 1 लाख रुपए था, ठीक, फर्स्ट ईयर उसने कितना रिडीम कर दिया? 25,000। तो कितना सेकंड ईयर ओपनिंग बचा? 75। देर आफ्टर सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में कितना राइट ऑफ कर दिया? सेकंड ईयर के एंड में 25 अगेन। तो थर्ड ईयर के बिगनिंग में कितना होगा? 50,000। फिर थर्ड ईयर के एंड में कितना राइट ऑफ किया होगा? 25,000। तो फोर्थ ईयर के बिगनिंग में कितना बैलेंस बचा होगा? 25,000। उसी तरह फोर्थ ईयर के एंड में कितना राइट ऑफ कर देगी? 25,000 अगेन। तो कंपनी के पास पांचवें साल कोई भी डिबेंचर अनपेड नहीं होगा। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर इन ईच एंड एवरी ईयर। अब आप रेशियो देख लो, तो यहाँ रेशियो कितना बन रहा है, आप रेशियो कैलकुलेट कर लो इसका। यहाँ 100, 75, 50 एंड ये 1 2 3 4, द रेशियो इज 4:3:2:1। ओके, ये रेशियो बन गया। अब कंपनी को कितना राइट ऑफ करना है? 6,000 रुपए। तो पहले साल कितना राइट ऑफ करेगी? 6,000 इंटू 4/10। 10 कैसे आया? 4 3 7 to 9 to 10। तो कंपनी पहले साल कितना राइट ऑफ करेगी? 6,000 इंटू 4/10। दूसरे साल कितना राइट ऑफ करेगी? 6,000 इंटू 3/10। तीसरे साल कितना राइट ऑफ करेगी? 6,000 इंटू 2/10। फोर्थ ईयर कितना राइट ऑफ करेगी डिस्काउंट? सो पहले साल 2,400 राइट ऑफ होगा, दूसरे साल 1,800 आउट ऑफ होगा, तीसरे साल 1,200। सो ये हर साल राइट ऑफ अमाउंट निकल गया कि कंपनी डिस्काउंट टोटल कितना राइट ऑफ करना था? 6,000 राइट ऑफ हो गया। 2418 प्लस 1,200 प्लस 600, अगर ऐड करोगे पूरा ऐड करके कितना आएगा? 6,000। So these are the total amount of discount on issue of debenture which are write off by the company in each and every year on the basis of the amount redeemed, amount of the debenture redeemed by the company, and the ratio is 4:3:2:1. And this is the second method, because in this situation company redeemed its debenture by the एनुअली इक्वल इंस्टॉलमेंट। आप देख रहे हो इसमें कंपनी हर साल इक्वली इंस्टॉलमेंट से क्या कर रही है? डिबेंचर को रिडीम कर रही है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड। सो लेट्स वी मूव टू द प्रिपरेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने साल के लिए राइट ऑफ करना है? 4 साल के लिए। फॉर्मेट मैंने अभी जस्ट आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसी तरह से आपको इसमें भी फॉर्मेट बनाना है, दैट इज डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सो this is the account discount on issue of debenture, and you know very well डिबेंचर इशू कब हुआ था उसकी डेट क्वेश्चन में दिया नहीं था। सो फर्स्ट ईयर आपने डिबेंचर इशू किया, दैट इज 2 डिबेंचर, और एट द टाइम ऑफ डिबेंचर इशूइंग यू इनकर्ड अ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दैट इज 6,000। तो टोटल डिस्काउंट विल बी 6,000। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आप कितना राइट ऑफ करोगे? 2,400। सो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2,400। फर्स्ट ईयर फिर आपका बैलेंस आएगा, एंड बैलेंस विल बी नोन एज द 6,000 माइनस 2,400, द बैलेंस विल बी 3,600, सॉरी 2,600, सॉरी 3,600 सही था। एंड नाउ सेकेंड ईयर टू बैलेंस BD 3,600. Again in the second year you will write off the amount is 1,800. आप 1,800 अमाउंट राइट ऑफ करोगे। सो बाय स्टेटमेंट ऑफ PL दैट इज 1,800 आपने राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद फिर बैलेंस करोगे, कितना बचा? 1,800 क्लोज। थर्ड ईयर फिर टू बैलेंस BD अगेन 1,800 will be posted in this side. In the third year you will again write off rupees 1,200, फिर राइट ऑफ करोगे 1,200 बाय स्टेटमेंट ऑफ PL 1,200। बैलेंस कितना बचेगा? 600।
सो इन द फोर्थ ईयर यू नो वेरी वेल सर, अब तो मैं कर ही लूंगा, दैट इज टू बैलेंस BD 600 and by statement of PL 600 in the fourth year. So you can see that in the fourth year, company write off all the discount on debenture by the following this way. First year 2400, second year 1800, third year 1200, last year 400, 600. So this is a second method which are used to write off the discount on issue of debenture. Let's we move to the third and last method of this topic. And you know very well, the third method will be used when company redeem its debenture. यानी जब कंपनी अपना डिबेंचर रिडीम करती है इन इनइक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी बराबर में रिडीम नहीं करती, इनइक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करती है, तो उस सिचुएशन में हम लोग थर्ड मेथड को फॉलो करते हैं. सो द थर्ड मेथड ऑफ this topic is repayable of debenture. That is, third method is repayable of debenture in equal installment. And you know very well, this method is adopted when company redeem its debenture in unequal installment. Okay, so ये method company कब adopt करती है? When this method is adopted when this method is adopted when company redeemed its debenture in unequal installment. In unequal installment, जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी रिडीम तो करेगी इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू रहेगी वो इक्वल नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी? इनइक्वल रहेगी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप पहचानोगे कि आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है. आप कहोगे सर एक एग्जांपल दे दो. ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, छोटा सा कोई एक एग्जांपल जिससे आप समझ सको कि कंपनी कब ये मेथड अडॉप्ट करेगी. मैं आपको तरीका बता देता हूं, उसका अकाउंट आप खुद बना लेना, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि हाउ वी विल प्रिपेयर दी अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. सो वो आप तो पता चल गया, बस आपको ये पता करना है कि इस मेथड में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे. सो आई विल टेक द वन एग्जांपल फॉर यू. एक इससे कई अलग तरह के एग्जांपल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि यही एक क्वेश्चन है, एक ऐसा तरीका है. सो आई विल टेक द एग्जांपल फॉर यू रिलेटिंग टू द थर्ड टॉपिक. The question is, a company issued 12% debenture. The question is, a company issued 12% debenture of rupees 10 lakh. Sorry, rupees 10 lakh. 10 लाख रुपए का डिबेंचर कंपनी ने इशू किया एट द रेट ऑफ 8% डिस्काउंट. डिस्काउंट का रेट है दैट इज एट द रेट ऑफ 8% डिस्काउंट. डिबेंचर आर टू बी रिडीम्ड, यहां मैं लिख दे रहा हूं, डिबेंचर आर टू बी रिडीम्ड by unequal installment. That is year end 2, 3, 4, 5. अमाउंट कितना रिडीम कर रही है? फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर 1 लाख, उसके बाद 2 लाख,
उसके बाद 3 लाख और उसके बाद 4 लाख। सो आपने देखा कि कंपनी कैसे रिडीम कर रही है। सेकेंड ईयर के एंड में 1 लाख रुपए लौटा रही है, तीसरे साल के एंड में 2 लाख रुपए लौटा रही है, चौथे साल के एंड में 3 लाख रुपए लौटा रही है और पांचवें साल के एंड में 4 लाख रुपए लौटा रही है। और कंपनी को टोटल लौटाना कितना है? 10 लाख रुपए। तो देखो 1, 3, 6, 4, 10 लाख रुपए लौटा दी। यानी कितने साल के बाद लौटा दी? 5 साल बाद। ठीक है, आपको ये पता करना है कि कंपनी हर साल कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करेगी। इसमें अकाउंट बनाने के लिए बोला है, मैं लिख दे रहा हूं, प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट फॉर 5 ईयर। आपसे 5 साल के लिए डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट पूछेगा बनाने के लिए। सो आप कैसे बनाओगे? आपको तो पता होना चाहिए ना कि कंपनी हर साल कितना पैसा राइट ऑफ करेगी। सो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा एंड यू नो वेरी वेल, यहाँ पे रिडम्पशन से इंस्टॉलमेंट पे तो रिडम्पशन हो रहा है इनइक्वल, लेकिन इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, इनइक्वल है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि हर साल कंपनी कितना रिडीम कर रही थी? 25 हजार। यहाँ पे कंपनी हर साल देखो बराबर नहीं कर रही है। So how we will calculate the amount of discount return of every year? So you know very well, आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। मैंने अभी जस्ट एक टेबल बनाया था आपको, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना कि कंपनी कैसे राइट ऑफ करेगी। ओके, सो एक टेबल मैं बनाता हूँ यहाँ पे एंड टेबल का नाम होगा पहले साल ईयर। ठीक, सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, outstanding amount of debenture. Third will be ratio and fourth one is a कितना अमाउंट राइट ऑफ होगा, अमाउंट राइट ऑफ एवरी ईयर। याद रखना हर साल कंपनी कितना राइट ऑफ करेगी। सो कंपनी कितने साल में रिडीम कर रही है? 5 साल में। लेकिन 5 साल में पहला साल भी आएगा, दूसरा साल भी आएगा, तीसरा साल भी आएगा, चौथा साल भी आएगा, 5 साल आएगा। मैं थोड़ा इसमें स्पेस ले लेता हूं आप लोगों के लिए। यानी कंपनी 5 साल में डिबेंचर राइट ऑफ तो कर रही है, बट उसका तरीका अलग है। पहले साल के शुरुआत में कंपनी पर कितना कर्जा था, कितना डेब्ट था? 10 लाख रुपए। अब आप ये बताओ, पहले साल के एंड में कंपनी ने कुछ भी पे किया? देख के ईयर एंड कब से पेमेंट करना स्टार्ट किया है कंपनी ने? अगर आप टेबल देखो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, उसमें कह रहा है कि कंपनी ने पेमेंट करना स्टार्ट किया है दूसरे साल से, वो भी दूसरे साल के एंड में। तो अब आप बताओ दूसरे साल के शुरुआत में कंपनी पर कर्जा कितना होगा? सर कर्जा उतना ही होगा, कोई कर्जा यानी जो डेप्ट है उसमें कोई भी डिक्लाइनमेंट नहीं होगी। जब हम तीसरे साल में जाएंगे तो कंपनी कितना पे कर चुकी होगी? 1 लाख रुपए। तो इस साल कंपनी पर कर्जा कितना होगा? 9 लाख रुपए। चौथे साल कंपनी के ऊपर कितना कर्जा होगा? 2 लाख रुपए और पे कर चुकी होगी, तो कितना कर्जा होगा? 7 लाख। पांचवें साल कंपनी के ऊपर कितना कर्जा होगा? 3 लाख दे चुकी होगी, 7 लाख में से कितना होगा? 4 लाख। और आखिरी साल अगर छठवें में देखते तो छठवें में 0 रुपए आता। क्यों? क्योंकि छठवें साल तक आप पांचवें साल के एंड में कितना दे चुके होते? 4 लाख। तो पहले साल आपने शुरुआत था तो कोई भी पेमेंट नहीं किया होगा, दूसरे साल तो आपने पेमेंट किया ही नहीं, दूसरे साल के एंड में पेमेंट किया। तो दूसरे साल के बिगनिंग में आपके पर डेप्ट था 10 लाख रुपए। तीसरे साल के बिगनिंग में आपके पास कितना डेप्ट था? 1 लाख दे दिया था, 9। फिर 2 लाख दे दिया, 7 लाख। फिर 3 लाख दे दिया, 4 लाख। और फिर उसके बाद 0, क्योंकि छठवें साल आप पूरा पे कर चुके होगे, 4 लाख दे दियोगे जी। रेशियो निकाल लो, तो रेशियो जो आएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के साथ आएगा। वो रेशियो मैंने निकाल लिया है, दैट इज 4, 7, 9, 10 एंड 10। बहुत कॉम्प्लेक्स था? नहीं सर, सबका 550 हटाना था बस, बन गया रेशियो। और रेशियो का टोटल क्या आएगा? 10, सॉरी सबका टोटल आएगा 40, मुझे यहाँ तक, हाँ 40। So ratio will be 1040, 1040, 940, 740 and 440. अब डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, पहले डिस्काउंट की वैल्यू तो कैलकुलेट कर लो। डिस्काउंट कितना होगा? तो डिस्काउंट की वैल्यू होगी दैट इज 10 लाख का कितना परसेंट? 8%। डिस्काउंट कितना हुआ कंपनी को? 10 लाख का 8%। सो द टोटल डिस्काउंट बॉर्न बाय द कंपनी दैट इज 80,000। यानी उसे 80,000 को राइट ऑफ करना है कितने साल में? 5 साल। अमाउंट क्या क्या होगी? पहले साल होगा 80,000 का 1040, दूसरे साल 80,000 का
1040 तीसरे साल 80,000 का, 940 इस साल होगा 80,000 का, 740 और आखिरी साल होगा 80,000 का, 440. So this is the amount write off each year by the company. First year 20,000, second year 20,000 write off करेगी और तीसरे साल करेगी 18,000, चौथे साल करेगी 14,000 और आखिरी साल करेगी that is 8,000. So total amount write off हो गया, you know very well. So this और each and every year जब आप 5 साल का डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करोगे, जब आप 4 साल का डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो उसमें पहले साल कितना राइट ऑफ करोगे 20,000, फिर जितना बैलेंस आएगा फिर 20,000 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फिर 18,000, फिर फोर्थ ईयर 14,000 एंड लास्ट ईयर दैट इज 8,000. So I hope this is your homework to prepare the discount on debenture account for 5 years and I will give you the solution. Almost 95% का सॉल्यूशन तो मैंने ही आपको दे दिया कि हर साल कितना राइट ऑफ होगा. बस आपको एक टेबल बनाना है, मतलब एक अकाउंट बनाना है जिसमें हर साल आपको राइट ऑफ करना है. 5 साल के लिए अकाउंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएलसीएस को राइट ऑफ कर देना है. सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड ऑल द टॉपिक्स वेरी इजीली. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.